वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रेड पेएबल एंड करंट लायबिलिटीज। मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो हमने ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कवर अप किए थे वही सिमिलर प्रोसीजर्स ट्रेड पेएबल के अंदर भी हमें मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट था, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी है। तो उसी पैटर्न पर प्रोसीजर्स यहां पर सारे के सारे मिलेंगे। एग्जिस्टेंस के लिए, कंप्लीटनेस के लिए, वैल्यूएशन के लिए, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में वहां पर आपको शेड्यूल 3 की अकॉर्डिंग जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टडी करनी है। नाउ सबसे पहले तो इसमें एक अलग टॉपिक दिया हुआ है और जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है याद करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। एक लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कब क्लासिफाई किया जाएगा? A liability shall be classified as the current liability if it satisfy any of the following criteria. Any, that means यदि इन फोर में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है then that liability will be considered as a current liability. But if any liability is not satisfying any of the criteria, any of these four criteria, then that liability will be classified as the non-current liability. So, करंट लायबिलिटी के चार क्राइटेरिया क्या क्या है? नंबर वन, यदि लायबिलिटी को सेटल करना है इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, if it is expected to be settled in the company normal operating cycle. Number 2, it is held primarily for the purpose of being traded, trade liability की नेचर में है. It is due to be settled within 12 months after the reporting date. Reporting date 31st of March, let's say 25. तो यदि इसके नेक्स्ट 12 मंथ में सेटल करना है, it is due to be settled within next 12 months from the reported date, then again it is to be classified as the current liability. And या फिर company does not have any unconditional right to defer the settlement of a liability for at least 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. तो कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट्स नहीं है टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी बियॉन्ड 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. तो चार क्राइटेरिया हो गए एक लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करने के. क्राइटेरिया नंबर वन, इफ इट इज एक्सपेक्टेड that this liability is to be settled within normal operating cycle. Number 2, that liability is held primarily for the purpose of trading activity, means ये trade liability है. Third one, it is due to be settled within 12 months after the reporting date. या फिर company is not having any unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. तो यदि आप 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट पर काम कर रहे हैं और एक लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट बिफोर 31 मार्च 26 करनी पड़ेगी, आप उस लायबिलिटी को डेफर नहीं कर सकते बियॉन्ड 12 मंथ्स. इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. तो जो लायबिलिटी रिपोर्टिंग डेट के नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर अंदर सेटल्ड होनी है, दैट लायबिलिटी इज टू बी क्लासिफाइड एज द करंट लायबिलिटी. या लायबिलिटी इज सेटल्ड, लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, या लायबिलिटी एक ट्रेड लायबिलिटी है. सो
a liability shall be classified as current when it satisfy any of these criteria, but if any of these criteria is not satisfied, that means other liabilities, they will be classified as the non-current liabilities. Now, अब इसके बाद assertions आ गई। 4 assertions है जिसके ऊपर प्राइमरीली हमें काम करना है। Existence, completeness, valuation, presentation and disclosure. Existence: ensure the existence of trade payable and current liabilities as at the year end. Completeness: ensure that trade payables and liability balances recognized in the financial statement. Valuation: ensure that trade payable and current liabilities have been valued appropriately. Presentation and disclosure: to ensure that disclosures have been appropriately made. तो ये 4 assertions हैं जिसके ऊपर ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं सो एज टू कलेक्ट द एविडेंसेस। नंबर 1, existence. Check whether the controls are in place to ensure that any purchase or expense invoice does not get recorded more than once, and payable balances are automatically recorded in the general ledger at the time of recording of expense. यदि आपने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, मान लीजिए परचेजेस की है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेड पेएबल ऑटोमेटिकली जनरल लेजर में रिकॉर्ड होना चाहिए। एंट्री ही क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट, या फिर परचेजेस की जगह कोई और एक्सपेंस इनकर्ड किया है जिसके लिए अभी पेमेंट नहीं की। पेमेंट करोगे तो क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, बट पेमेंट नहीं की, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसकी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली जनरल लेजर में रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो क्या आया? हमें चेक करना है क्या कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं टू एंश्योर दैट एनी एक्सपेंस और परचेजेस they are recorded only once, they are not recorded more than once. एक point। And payable balances need to be automatically recorded in the general ledger at the time when any expenditure is to be booked or recorded in the books. Obtain account payable aging report and trace its balances टू द जनरल लेजर। तो जनरल लेजर में ट्रेड पेएबल्स का या करंट लायबिलिटीज का जो बैलेंस है उसी की अकॉर्डिंग आपने उन बैलेंसेस को एजिंग शेड्यूल में कन्वर्ट किया है कि कौन सा अमाउंट है जो अभी नॉट येट ड्यू या ड्यू हो गया है एंड 60 डेज से ज्यादा ड्यू, 60 से 90, अबव 90, 90 से 180, 180 अबव up to 365, more than 365। तो इस तरह से आप एक एजिंग रिपोर्ट तैयार करते हैं। जब हम इनके डिस्क्लोजर्स भी देते हैं एज पर शेड्यूल 3, हमें आउटस्टैंडिंग्स का डिस्क्लोजर्स देना होता है फॉर द पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट। आउटस्टैंडिंग है अप टू 1 ईयर, 1 to 2 year, 2 to 3 years, more than 3 years, and total amount that is due to MSME, others, disputed dues of MSME, disputed dues of others. So following aging schedule need to be given for the trade payable as per the requirement of schedule 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर।
इसमें एज सच कुछ भी नया नहीं आएगा, जैसे ट्रेड रिसीवेबल का था इन अ सिमिलर मैनर ट्रेड पेएबल का आएगा। ट्रेड रिसीवेबल में आप एक असेट को कंफर्म कर रहे थे, ट्रेड पेएबल में आप एक लायबिलिटी को कंफर्म कर रहे हैं। मैं एक बार आपको इसकी क्विक रीडिंग करा देता हूं, नया पॉइंट इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस बाय द डायरेक्ट कम्युनिकेशन is the best method so as to ascertain whether the balances are genuine, accurately stated, undisputed, and that is more important, particularly in a situation where the internal controls are weak. जहां पर इंटरनल कंट्रोल वीक है। एम्प्लॉय direct confirmation procedure with the consent of the entity. There might be certain situation जहां पर मैनेजमेंट ऑडिटर को रिक्वेस्ट करती है नॉट टू सीक द कंफर्मेशन। एक सेकेंड। जहां पर मैनेजमेंट ने ऑडिटर को रिक्वेस्ट की कि आप कंफर्मेशन नहीं लीजिए फ्रॉम सम ट्रेड पेएबल, तो आप मैनेजमेंट से उसका रीजन तो जानेंगे ना कि व्हाई वी शुड नॉट ऑब्टेन द कंफर्मेशन फ्रॉम दैट ट्रेड पेएबल। और जो रीजन मैनेजमेंट ने दिया हमें, उस रीजन की वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस को भी हमें वेरीफाई करना होगा। ये सब बातें ऑलरेडी हम एसए 505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन के स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, तो वही बात यहां लिखी है। सो there may be the situation where management requests the auditor not to seek the confirmation from certain trade payable. In such cases, consider whether there are valid grounds for such a request. While determining the information, हमें ट्रेड पेएबल से कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, क्वांटिटी जो उन्होंने सेल की, या अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशन, क्रेडिट पीरियड। सो व्हाइल डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन, इन कंफर्मेशन की फॉर्म क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, किस एक्सटेंट तक कंफर्मेशन प्रोसीजर अप्लाई करना है, किस टाइम पर कंफर्मेशन प्रोसीजर अप्लाई करना है। ऑडिटर need to consider all the relevant factors like effectiveness of internal control, apparent possibility of disputes, irregularities in the account, probability that request will receive consideration, and materiality of the amount involved. So क्या इंफॉर्मेशन हमें कंफर्म करनी है, किस टाइम पर कंफर्मेशन प्रोसीजर अप्लाई करना है, किस एक्सटेंट तक कंफर्मेशन प्रोसीजर अप्लाई करना है, उसके लिए एज ए ऑडिटर वी नीड टू कंसीडर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, अपरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डिस्प्यूट, इरेगुलरिटीज इन अकाउंट और एनी मिसस्टेटमेंट, चांसेस ऑफ मिसस्टेटमेंट एटसेट्रा। Trade payable may be requested to confirm balance either as at the date of balance sheet or at any other selected date, and if any date other than balance sheet date is selected, try it is to be near the balance sheet date which is reasonably close to the date of balance sheet. फिर बात आ जाती है form of confirmation. It may be positive or negative. Positive request, it means creditor, trade payable, third party will reply whether it agree or disagree with the information requested, and negative request, creditor will respond only if he disagree with the balances. So ये हमारा डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर है इन रिलेशन टू द ट्रेड पेएबल और यू कैन से क्रेडिटर। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, व्हेन अ लायबिलिटी इज टू बी क्लासिफाइड एज अ करंट लायबिलिटी। नंबर 2, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर टू बी कंसीडर्ड
while applying the direct confirmation procedure in case of trade payable. Next, audit procedure to establish completeness. एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल एग्जाम में आ सकता है, कोई बात नहीं, एक बार क्विकली इसको भी स्टडी कर लेते हैं। परफॉर्म कट ऑफ प्रोसीजर। कट ऑफ प्रोसीजर क्या है, बहुत बार पढ़ चुके हो। बैलेंस शीट डेट के आसपास जो ट्रांजैक्शन हो रही है उन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, वेदर द ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 or the transaction belongs to financial year 25-26. So cut off procedure apply करिए near the balance sheet date for last 5 invoices that are received or recorded at the end of a reported date which have been included in the trade payable. क्या उनके रिलेशन में गुड्स रिसीव्ड हो चुके हैं? यदि आपने इसकी लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो गुड्स आए हैं उनके रिस्क एंड रिवार्ड रिलेटेड विद द ओनरशिप वो हमारी क्लाइंट की फेवर में असाइन हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं। जब रिस्क एंड रिवार्ड क्लाइंट की फेवर में ट्रांसफर होंगे तो ही तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट को एज ए लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड इन द फेवर ऑफ एंटिटी एंड all the goods that are received prior to year end, they should be recorded in the form of purchases and included in the trade creditors. Test the purchases on sample basis, selecting the account from payable ledger. Check their supporting documents to ensure that purchases are being recorded at the correct amount. डेट की चेकिंग करिए, मैच द इनवॉइस डेट्स टू गेट एंट्री डेट्स टू चेक whether the purchases are being recorded in the correct accounting period. Review the subsequent expense voucher. जो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पर तो उसकी पेमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट आपने की होगी, तो रिव्यू द subsequent expense voucher, payment का voucher after the balance sheet date. Review all material expenses voucher recorded post balance sheet date to check whether they relate to the transaction from within the audit period. For any advance that is received from the customer or revenue received in advance, obtain the customer wise listing along with aging and the nature. Verify if any advance are outstanding beyond the 6 months. Inquire from entity management if there exists any dispute with the customer. Any additional liability is to be recorded for that amount for which there is a dispute with the customer. So, ये 5 पॉइंट हैं इन रिलेशन टू कंप्लीटनेस। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? नंबर 1, कट ऑफ प्रोसीजर, चेकिंग ऑफ सर्टेन परचेज इनवॉइस ऑन सैंपल बेसिस सो एज टू एंश्योर examination of supporting document to check that purchases are being recorded at correct amount. Then purchase invoice की डेट को एंट्री इनवर्ड डेट से मैच करिए कि ये करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुए हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर्स को रिव्यू करिए। एनी एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर वाइज लिस्टिंग लीजिए विद इट्स एजिंग एंड नेचर। वेरीफाई any advance whether it is outstanding beyond 6 months. Inquire from entity management if there exists any dispute with the customer. So
नंबर 1 पर हमने एग्जिस्टेंस की बात की, नंबर 2 पर हमने कंप्लीटनेस को कवर किया। याद करने में एक ही पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है अभी तक, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू ट्रेड पेएबल। नाउ अब इसके बाद आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या है कि बैलेंस शीट डेट पर जो वैल्यूज लिखी गई है ट्रेड पेएबल की, वेदर इट इज एप्रोप्रिएटली वैल्यूड और नो। ईयर एंड पर यदि किसी भी क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करनी ड्यू टू एनी रीजन, देन अमाउंट नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। और जो अमाउंट राइट ऑफ हुआ है, देन क्या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएट ऑथोराइजेशन अप्रूवल अवेलेबल है हमारे पास या नहीं है। यहां पर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो आपको मिलेगा इसका एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं आपको एक बार वैल्यूएशन के पॉइंट्स की भी रीडिंग करा देता हूं। लर्निंग आपको करनी है एनालिटिकल प्रोसीजर्स की। First point, review the process followed by the company to identify whether any old creditor balance जिसकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, it need to be written back. This will include a consistency comparison with the method used in the last year and determination of which method, whether method is appropriate or not. Aging of payable balances and list of vendor with whom the company has the dispute and any claims from the customers under litigation and compare with the previous years. Check that any write back in the liability balance assessed as no longer payable, क्या इसका अप्रूवल किया गया है बाय अप्रोप्रिएट एंड ऑथोराइज्ड मेंबर ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। जो ट्रेड पेएबल फॉरेन करेंसीज में है उन्हें रीस्टेट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द AS 11। अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट process to identify the principal amount and interest due thereon remaining unpaid to any micro, small and medium size enterprises at the end of accounting period। तो बेसिकली वैल्यूएशन में आप देखें तो एक पॉइंट, आप प्रोसेस को रिव्यू करिए जो एंटिटी फॉलो कर रही है टू आइडेंटिफाई क्या किसी ओल्ड क्रेडिटर के बैलेंस को राइट ऑफ करना है क्या। नंबर 2, आप वापिस एक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करिए जिसके थ्रू मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करती है एनी अमाउंट दैट इज आउटस्टैंडिंग इन रिलेशन टू प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टुवर्ड्स एनी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। थर्ड, एजिंग की बात कर लीजिए। ऑब्टेन एज वाइज लिस्टिंग ऑफ पेएबल बैलेंसेस, कंपेयर इट विद द प्रायर पीरियड। Approval of any return of and accounting standard 11 in relation of foreign currency trade payable। तो फॉरेन करेंसी ट्रेड पेएबल को रीस्टेट करना है इंडियन रुपी में कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 11। नेक्स्ट, ये लर्न करना है एनालिटिकल प्रोसीजर्स कौन कौन से। कंपैरिजन किसका, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेएबल का 31 मार्च 25 के बैलेंस को कंपेयर करिए विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24। रिलेशनशिप बिटवीन करंट ईयर ट्रेड पेएबल बैलेंस एंड करंट ईयर परचेजेस, दैट इज creditor turnover ratio
with that ratio of previous year. कंपैरिजन किसका? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेएबल का किसके साथ? विद द कॉरेस्पॉन्डिंग बजटेड फिगर इफ अवेलेबल. कंपैरिजन करंट ईयर एजिंग शेड्यूल ऑफ ट्रेड पेएबल का किसके साथ? विद कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर फॉर प्रीवियस ईयर. Comparison of significant ratio relating to trade payable with the similar ratio of other firms in the same industry. Comparison of significant ratio with the industry norms. अब आप देखेंगे ये जितने भी पॉइंट हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर, ये सेम पॉइंट आप पढ़कर आए थे ट्रेड रिसीवेबल में. ये रहा एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स. इसी तरह से डायरेक्ट कंफर्मेशन वहां पर भी था. तो जो टॉपिक ट्रेड रिसीवेबल में इंपॉर्टेंट थे वही टॉपिक उसी तरह से ट्रेड पेएबल के अंदर भी इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं अब डिस्क्लोजर पर. डिस्क्लोजर में फर्स्ट डिस्क्लोजर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. इनका प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन remaining unpaid to any supplier at the end of accounting period. Amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of MSME Development Act 2006 along with amount of payment made to supplier beyond the appointed date during each accounting year. ये सारे डिस्क्लोजर आपने अकाउंट्स में भी पढ़े होंगे. Interest due and payable for the period of delay in making the payment but without adding interest specified under MSME Development Act. Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting period. Further interest remaining due and payable even in succeeding year until such date when interest dues above are actually paid to small enterprise for the purpose of disallowance of deductible expenditure under section 23 of MSME Development Act. तो अब क्वेश्चन यही अराइज होता है कि ये MSME के अंदर ये इतनी डिटेल क्या है? MSME एक्ट डेवलपमेंट एक्ट के अंदर देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि जो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस होते हैं जब ये किसी को गुड सप्लाई करते हैं तो ये जो पेमेंट है इनकी, ये पेमेंट इनको टाइम पर मिलनी चाहिए. यहां पर एमएसएमई कौन है? बेसिकली सप्लायर्स हु आर सप्लाइंग द गुड्स टू आवर क्लाइंट. तो हमारा क्लाइंट है बायर, एमएसएमई है सप्लायर. हमारे क्लाइंट ने एमएसएमई को पेमेंट करनी है, लेकिन यदि हमारा क्लाइंट एमएसएमई को पेमेंट करने में डिले करता है, इन दैट केस इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड. और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं किया जाता. इनकम टैक्स लॉ में इसे डिसअलाउड कर दिया जाता है, डिसअलाउड. तो आपको जो पॉइंट्स यहां पर डिस्क्लोजर में चेक करने हैं एज ए ऑडिटर, हमें जो जो पॉइंट्स चेक करने हैं, क्या हमारे क्लाइंट ने कितना प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट ड्यू है that is remaining unpaid to any supplier at the end of accounting period. बताया कि हमारे XYZ इतने पर क्लाइंट हैं, इतने सप्लायर हैं. इन सप्लायर से हमें ने गुड्स खरीदे, इनका इतना प्रिंसिपल अमाउंट देना है, इतना इंटरेस्ट पे करना है.
इंटरेस्ट कितना पे कर दिया गया है बाय द बायर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। एक स्पेसिफाइड पीरियड डिफाइंड है, इस पीरियड के अंदर अंदर कितना इंटरेस्ट पे किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। पहले में क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू। अब इसके बाद क्या आ गया, इंटरेस्ट पेड बाय द बायर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16। देन amount of interest due and payable for the period of delay in making the payment without the interest specified under MSME। MSME का इंटरेस्ट छोड़कर अलग से कितना इंटरेस्ट देना है, जो MSME ने अपना इंटरेस्ट बताया सेक्शन 16 में वो एक अलग हो गया। तो यहां पर आपने पॉइंट नंबर 2 में सेक्शन 16 वाला इंटरेस्ट बता दिया, पॉइंट नंबर 3 में अदर देन MSME का इंटरेस्ट आ गया, बट विदाउट एडिंग द इंटरेस्ट स्पेसिफाइड अंडर MSME डेवलपमेंट। तो पहले पॉइंट में आपने क्या डिस्क्लोजर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू रिमेनिंग अनपेड। फिर आपने बताया इंटरेस्ट पेड बाय द बायर अंडर सेक्शन 16 ऑफ द MSME डेवलपमेंट एक्ट। फिर आपने बताया कितना इंटरेस्ट ड्यू है एंड पेएबल है for delay in making payment without adding the interest specified under the MSME Development Act. Interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting period। ये अमाउंट आपको ईच अकाउंटिंग पीरियड के एंड का बताना है। मान लीजिए 3 साल से आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो करंट ईयर के एंड पर कितना आउटस्टैंडिंग है, उससे प्रायर पीरियड के एंड पर कितना आउटस्टैंडिंग था, उससे प्रायर पीरियड के एंड पर कितना आउटस्टैंडिंग था, एजिंग वाइज करके आपको इसका ब्रेकअप देना है। फर्दर इंटरेस्ट रिमेनिंग ड्यू एंड पेएबल इवन इन सक्सीडिंग ईयर्स until such date when the interest due above are actually paid to the small enterprise। तो ये डिस्क्लोजर्स MSME के आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स, इसका ब्रेकअप हमने कर ही लिया, MSME का, अदर्स का, डिस्प्यूटेड ड्यूज ऑफ MSME, डिस्प्यूटेड ड्यूज ऑफ अदर्स। अदर करंट लायबिलिटीज रीडिंग के लिए है, ये आप सेल्फ करिएगा, एक बार रीडिंग करके बेशक छोड़ सकते हैं, कोई एज सच इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट रीडिंग जरूर करनी है। हो सकता है आपका ही बैड लक हो एग्जाम में कि हाँ इसी को छोड़ दिया और यही एग्जाम में आ गया। तो इसमें एज सच समझाने वाला कुछ है नहीं, सिर्फ पॉइंट्स हैं दैट नीड्स टू बी लर्न। तो एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक एज टू द ट्रेड पेएबल एंड करंट लायबिलिटीज का। अब इस टॉपिक को दोबारा अच्छे से रिवाइज करिएगा और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे, दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। या ये मैं आपको होमवर्क में दे दूं सेल्फ के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट, असर्शन, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर्स, ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का टॉपिक कराऊंगा और उसके साथ ही बैलेंस शीट के आइटम्स की ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी। प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में बैलेंस शीट की आइटम्स को कंप्लीट करते हैं।